Hello students, I am Dr. Shailendra Kumar Tripathi. In last e-lecture, we have discussed about life history and variation in population. In this lecture, we are going to discuss about the lifespan of population from the paper Ecology. The learning outcome of this module is following. First, you will be able to know the definition of lifespan. What is lifespan? Then the second, you will be able to know the different characteristic of lifespan of plant and animals. The third one is you will be able to know the characteristic of annuals, biennials, and perennial plants. And the last one, you will be able to know the measurement of lifespan of an organism. So let's start the lecture. First we will know the definition. What is lifespan? So lifespan is basically the period of time between the birth and death of an organism. किसी भी organism के birth और death के बीच का समय जो है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. Similarly, it measure the duration of life. लाइफ के ड्यूरेशन को मेजर करता है लाइफ स्पैन. फिर it is used to describe either the maximum or average life of a population or an individual organism. किसी भी population या किसी भी individual organism के एवरेज लाइफ को या मैक्सिमम लाइफ को डिस्क्राइब करता है लाइफ स्पैन. एंड इट इज द फंडामेंटल लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लांट. किसी भी प्लांट के फंडामेंटल लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है. अब आगे जानते हैं व्हाट आर द लाइफ स्पैन कैरेक्टरिस्टिक. सो basically the lifespan of each plant and animal species are determined by their heredity. किसी भी plant और animal species की heredity जो है वो उसके life span की key determinant होती है, determine करती है. अब ये heredity जो है किसी भी organism की उसके genetic material के अंदर में lock रहती है in the form of code. The heredity characteristic are locked within the code of their genetic material. अब इन codes का काम क्या होता है? These codes are instructions that specify the age of a species beyond which the organism cannot live under even most favorable condition. ये genetic material जिन codes को carry करते हैं वो code instructions को carry करते हैं जो किसी भी organisms के एज को स्पेसिफाई करते हैं और उसके आगे कोई भी ऑर्गेनिज्म फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी सरवाइव नहीं कर सकता है. इन सम ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अकर्स बाय ए सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोन्स. These asexual reproduction results the formation of genetically identical organism. जब asexual reproduction होता है तो asexual reproduction से जो produce होने वाली species होती है they are genetically identical to each other. But the lifespan of these organisms are different from the other organisms that are produced by sexual reproduction. यानी asexual reproduction से प्रोड्यूस होने वाली स्पीसीज जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाली स्पीसीज के कंपैरिजन में डिफरेंट होती है. अब ये डिफरेंट क्यों होती है? डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि इनका हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनके अंदर में एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को इंट्रोड्यूस करता है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली स्पीसीज जो है उनके अंदर में
लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी होती है। द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स are capable of maintaining their lifespan long due to their hereditary characteristic. अब आइए जानते हैं what are the lifespan of plants. Lifespan of plants are the basis by which plants are classified into three categories, and out of these three categories, annuals are the first category. As the name suggests, annual का मतलब होता है एक साल. So the plants that live for only one growing season and produce flowers and seeds during this lifespan are called annuals. जो सिर्फ एक growing season में seeds और flowers को produce करते हैं पूरे लाइफ स्पैन में, उन्हें annuals कहा जाता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके कॉर्न, मैरीगोल्ड्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो इसके मेजर एग्जाम्पल्स हैं. ये एनुअल प्लांट्स जो होते हैं ये अपने लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर कंप्लीट करते हैं. दे रैपिडली एक्यूमुलेट फूड मटेरियल्स. चूंकि इनका लाइफ स्पैन 1 साल का ही होता है, इसलिए ये अपने फूड मटेरियल्स को बहुत फास्ट एक्यूमुलेट करते हैं. अब फास्ट फूड मटेरियल्स एक्यूमुलेट करने के कारण जो है कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं प्लांट्स के अंदर में. ठीक है. अब ये हार्मोनल चेंजेस जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज डे लेंथ और टेम्परेचर से भी रेगुलेट होते हैं. अब इन हार्मोनल चेंजेस का रिजल्ट ये होता है कि ये हार्मोनल चेंजेस लीफ प्रोड्यूसिंग टिश्यूज को एब्रप्ट कर देते हैं. यानी जो टिश्यूज लीफ प्रोड्यूस करने वाले हैं उन टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं, और जिसका नतीजा होता है कि लीफ प्रोड्यूस न हो करके फ्लावर प्रोडक्शन साल में सिर्फ एक बार होता है, वंस इन ए ईयर. अब ये फ्लावर का प्रोडक्शन जो है ये फ्रूट्स और सीड्स के साथ में जब इंप्रूव करता है आगे, तो ये रैपिडली फूड रिजर्वायर्स को डिप्लीट करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि फूड रिजर्वायर जो है वो एग्जॉस्ट कर जाते हैं और वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ द प्लांट जो है वो फाइनली डेथ कर जाता है. तो हमने देखा इसमें कि प्लांट जो एनुअल प्लांट्स होते हैं ये फास्ट फूड मटेरियल्स को एक्यूमुलेट करते हैं. इनके अंदर में एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज डे लेंथ, टेम्परेचर से एसोसिएटेड हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि लीफ प्रोड्यूसिंग टिश्यूज जो हैं वो एब्रप्ट कर जाते हैं, डैमेज कर जाते हैं, और इसके नतीजतन फ्लावर प्रोडक्शन साल में सिर्फ एक बार होता है. अब ये फ्लावर के प्रोडक्शन के साथ में एसोसिएटेड फ्रूट्स और सीड्स जो बनते हैं ये फूड रिजर्वायर्स को डिप्लीट करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि फूड रिजर्वायर के डिप्लीट होने से प्लांट का वेजिटेटिव पोर्शंस जो है वो धीरे धीरे ग्रो करना बंद कर देता है और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स को हम बाइनियल्स बोलते हैं. ये बाइनियल्स क्या होते हैं? जो कि ग्रो करते हैं 2 ग्रोइंग सीजन्स तक. दे लीव फॉर 2 ग्रोइंग सीजन्स. अब ये 2 ग्रोइंग सीजन्स का मतलब क्या है? फर्स्ट ग्रोइंग सीजन जो है वो रिप्रेजेंट करता है फूड एक्यूमुलेशंस को, और सेकेंड ग्रोइंग सीजन रिप्रेजेंट करता है फ्लावरिंग को. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट सीजन दे एक्यूमुलेट फूड इन thickened roots such as beets, carrots. ये जो है अपने रूट के अंदर फूड मटेरियल्स एक्यूमुलेट करते हैं, और उसके बाद सेकेंड सीजन में फ्लावरिंग जो है इसके अंदर होती है, और फ्लावरिंग होने से जैसे हमने एनुअल्स के अंदर में देखा आपका फूड रिजर्व जो है वो एग्जॉस्ट कर जाते हैं, और फूड रिजर्व एग्जॉस्ट करने के कारण जब सीड मैच्योर हो जाती है उसके बाद प्लांट
डेथ कर जाता है। सो बायनियल्स जो है ये 2 ग्रोइंग सीजन तक सरवाइव करते हैं। फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में दे एक्यूमुलेट फूड and in second growing season they perform flowering which exhaust their food reserve, and ultimately after the maturation of seeds the plant die. Next is perennials. Perennials जो है ये प्लांट जो है इनका लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होता है। दे सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आयरिस, डेल्फिनियम एंड अदर सॉप्सन ट्री। ये डेल्फिनियम की पिक्चर्स है जो गार्डन वगैरह में पाई जाती है, जिसका लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली एनुअल और बायनियल की तुलना में ज्यादा होता है। These perennial plants have permanent or temporary storage structures such as bulb, rhizome, tubers, which differ from annual and biennial plants. Annual और biennial plants की तुलना में इनमें परमानेंट या टेम्परेरी स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है जो साल दर साल रिन्यू होता रहता है। बल्ब, राइजोम, ट्यूबर्स, ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर। ये पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं दे रिक्वायर मैनी ईयर्स ग्रोथ टाइम बिफोर द फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के पहले इनको बहुत साल लग जाते हैं प्रॉपरली ग्रो करने के लिए, और ये प्री फ्लावरिंग पीरियड होता है, इसको जुवेनाइल स्टेज भी कहा जाता है। ये प्री फ्लावरिंग पीरियड ट्रीज और सर्ब्स जो है इनके अंदर शॉर्टर होता है, लेकिन कुछ जो है कॉमन बीच में ये लार्ज होता है। प्री फ्लावरिंग और जुवेनाइल स्टेज इन लार्ज प्लांट्स के अंदर में करीब करीब 30 से 40 साल में पूरा होता है, और इस 30 से 40 साल के प्री फ्लावरिंग स्टेज में प्लांट की ग्रोथ रैपिडली होती है, बट देयर विल नॉट बी फ्लावरिंग। ओके, सो these perennial plants require pre-flowering period before the flowering to grow rapidly. These pre-flowering period of tree and shrubs is usually shorter, but in common beech and other large deciduous trees, this pre-flowering or juvenile stage completes in 30 to 40 years, in which they grow rapidly without flowering. Some perennial plants such as cotton and tomato found in tropical regions have the capability to bloom and produce fruits, seeds and other useful parts in the first year. Okay? कुछ पेरिनियल प्लांट्स जिसमें कॉटन और टोमेटो है, कॉटन और टोमेटो जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, इन ट्रॉपिकल रीजन में ये ब्लूम करते हैं, मतलब फ्लावरिंग इनके अंदर फास्ट होती है, साथ में ये फ्रूट, सीड और अदर यूजफुल पार्ट्स जो है अपने फर्स्ट ईयर में ही बनाते हैं, पहले साल में, और उसके बाद में ये कंटिन्यूअसली एनुअल रिपीटिशन बेसिस पर ये प्रोडक्शन करते रहते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स का। These plants are often grown as annuals in the temperate zone. टेम्परेट जोन जो होता है ट्रॉपिकल रीजन में जो है ये लंबे समय तक सरवाइव करते हैं, और टेम्परेट जोन में ये एनुअल स्पीसीज की तरह ग्रो करते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस between the tropical environmental parameters and temperate environmental parameters. दोनों क्षेत्रों के क्लाइमेटिक वैल्यूज जो है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हो, रेनफॉल हो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो, ये डिफरेंट होने के कारण प्लांट
ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में एनुअल और पेरेनियल नेचर रिप्रेजेंट करता है. नाउ द नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन मेजरमेंट. So the lifespan measurement is done on the basis of calculating average lifespan and calculating the life expectancy. So first we will know what is average lifespan. So average lifespan is what? It is the analysis of mortality data of each species ऑफ ए पॉपुलेशन. किसी भी पॉपुलेशन के हर एक स्पीसीज के मोर्टेलिटी डेटा की एनालिसिस से हमको एवरेज लाइफ स्पैन मिलता है. नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन might be expected to live based on their current age and sex specific death rate. किसी भी पर्सन की एक्सपेक्टेड जीने की उम्र और उसके सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं. ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन हेल्थ बेस्ड ऑन द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पे हम पॉपुलेशन के हेल्थ को डिस्क्राइब करते हैं. और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट की जाती है बाय इंश्योरेंस कंपनीज यूजिंग ह्यूमन्स मोर्टेलिटी टेबल. ह्यूमन की मोर्टेलिटी डेटा के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करती हैं और उसके बेसिस पे वो डिफरेंट इंश्योरेंस प्रीमियम के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं. तो इस मॉड्यूल में हमने लाइफ स्पैन के बारे में जाना और लाइफ स्पैन से जुड़ी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना और डिफरेंट तरह के प्लांट्स, एनुअल्स, बायनियल्स एंड पेरेनियल के कैरेक्टरिस्टिक को जाना और लाइफ स्पैन को हम किस तरह से एवरेज लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं ये जाना. तो इस मॉड्यूल को जब हम एसेस करेंगे तो इन सवालों के जवाब हम दे सकते हैं बड़ी आसानी से. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन? देन यू कैन राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स and other organisms. Similarly, you can compare the characteristic features of annuals, biennials and perennial plants, and also individually their definition and characteristic you can write down. And similarly, at the last you can write down short notes on lifespan measurement or similarly definition of average lifespan and the life expectancy. I hope you will be able to answer all these questions. In next lecture, we will discuss about plant growth. Thank you.